ہلو، ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں بول رہا ہوں محمد اطہر صاحب کے یہاں سے، آپ بات کرنے کہہ رہے لکھیم پور کے پاس بول رہے ہیں آپ؟ جی حضرت، السلام علیکم۔ ذرا حضرت سے بات کریے، آپ بتائیے ہر کوئی بات، ٹھیک ہے؟ حضرت کہاں ہے؟ ہلو، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت؟ جی حضرت، دعا ہے آپ کی۔ حضرت مسئلہ کے لیے میں نے فون کیا تھا۔ جی میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، ابھی آج 10ویں کی فاتحہ تھی۔ اچھا، ہاں، تو میں مطلب بہت غریب پریوار سے سمبند رکھتا ہوں۔ جی میرے والد صاحب اکیلے بیچارے کمانے والے تھے، جس میں سے 4 بھائی ہیں، 1 بہن ہے، اور 1 بھائی کی شادی ہوئی، 3 بھائی 1 بہن شادی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں ابھی۔ ہاں، تو حضرت یہ ہے کہ یہی بکرا اور مرغا بازاروں میں کاٹ کر کے مشکل سے گزارا ہوتا ہے گھر کا۔ اچھا، تو ہاں، اور پھر میری ماں بہت زیادہ بیمار ہے، ان کو ہاسپٹل لے جانا، ان کی دوا علاج کرانا، تو یہ ہے۔ تو تیجا میں نے کروایا، تو اس میں سب لوگ گھر کے پریوار کے بولے کہ تیجا مطلب میں یہ کرو وہ کرو، تو میں نے کھانا کھلایا پلایا، لگ بھگ 10-12-15 ہزار روپے تقریباً چلا گیا۔ اور تیجا چلا گیا، اس کے بعد میں آج 10واں کرایا، تو اس میں سے بھی لگ بھگ آج 2-3 ہزار روپے چلے گئے۔ اور حضرت ہم لوگوں کے پاس پیسہ کوڑی ہے نہیں، سب کہتے ہیں نہیں کراؤ گے تو مطلب اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو اسی صورت میں نے کہا کہ اب یہ عالموں سے ہی سہارا لینا پڑے گا۔ تو اور ہاں ہاں، پھر 40ویں کا مطلب میٹر ہے، تو بولے کہ 40ویں میں سب کی دعوت کرو، سب کو بلاؤ، فقیروں کو بلاؤ، سب کا جوڑا دو۔ اور پھر امی ایک تو عدت میں بیٹھی ہیں، وہ اتنا پریشان ہیں، بولے کہ کمرے سے باہر نہ نکلو، برآمدے میں بھی مت آؤ۔ اور حضرت ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، مان کے چلیے آپ۔ اچھا، تو یہ مسئلہ ہے حضرت۔ ایسا ہے، جی یہ لوگوں کی یہ باتیں غلط ہیں، جی جی اور فاتحہ وغیرہ جو ہوئی ہے جی وہ اپنے سنیوں کے مذہب میں صرف مستحب کام ہے، جی جی یہ فرض و واجب نہیں ہے۔ جی اگر کوئی آدمی اس کو جائز مانتا ہو، اچھا سمجھتا ہو، جی برا نہ کہتا ہو، جی اگر نہ بھی کرے تب بھی سننی ہے۔ جی 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 اور خاص طور پہ جو غریب آدمی ہے جی تو اس کے لیے تو دھار لے کر کرنا تو علماء نے منع کیا ہے، جی جی بلکہ لکھا ہے کہ جس کے اوپر قرضہ آتا ہو وہ بجائے فاتحہ میں خرچ کرنے قرضہ ادا کرے۔ جی 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 یہ جی میں نے تو سنا ہے حضرت آپ کی زبانی، آپ کی تقریروں سے۔ جی تو اب جہالت کا تو کوئی علاج نہیں ہے، اور یہ دعوت کر کے کھانا کھلانا جو ہے جی جی یہ تو منع ہے۔ فاتحہ تو جائز ہے، مستحب ہے، جی اچھا کام ہے۔ جی یہ جی میت کے موقع پر یہ دعوت کی جاتی ہے گاؤں بستی والوں کی، خاندان برادری رشتے داروں کی، اس سے تو جی منع کیا ہے، حالت نے منع کیا، حالت میں لکھا ہے فتح و رضویہ میں ہے میت کے جی موقع پر ضیافت ممنوع ہے۔ جی جی تو اس میں تو پیسہ بھی خرچ ہوگا اور ثواب کہاں ملے گا؟ اس میں تو بجائے ثواب کا گناہ ہو سکتا ہے۔ ہاں حضرت بہت پریشان ہیں ہم لوگ، اب 40واں آ رہا ہے حضرت، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ قرضہ لے کر کے اب گھر میں ماں کی علاج کرائیں، کہ بھائی بہنوں کو دیکھیں، کہ اپنا خرچہ کریں، کہ اب یہ ادھر کریں۔ سب کہتے ہیں کہ نہیں باپ، تمہارے والد صاحب کو ثواب نہیں ملے گا۔ تو میں نے کہا میں یہ مسئلہ عالموں سے ہی نہیں تو پوچھوں ان گا۔ سے یہ کہیے کہ ثواب نہیں ملے گا، گناہ تھوڑی ہوگا۔ ہاں یہ بھی ہے۔ ثواب نہیں جی ملے گا، جی گناہ تو نہیں ہوگا۔ یہ کون جی کہہ رہا ہے جی گناہ ہوگا؟ سب یہی سر گاؤں کے، اور یہ کہہ رہے ہیں مطلب گناہ ہوگا۔ نہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب نہیں کراؤ گے تو ثواب نہیں ملے گا، اور تمہارے والد صاحب کو روح کو مطلب تسلی نہیں ہوگی، یہ نہیں ہے وہ بلکہ ہے۔ یہ دعوت کر کے کھانا کھلانا جو ہے یہ تو منع ہے نا، جی اس میں ثواب کہاں رکھا ہے؟ جی جی اچھا، فقیر مسکینوں کو معاملہ یہ ہے کہ وہ بھی اتنے بس کی بات ہو آدمی کھلائے، نہ بس کی بات ہو نہ کھلائے۔ وہ تو اپنے اسلام میں تو زکوٰۃ بھی صاحب نصاب پر رکھی گئی ہے، غریب آدمی پر زکوٰۃ فرض کہاں ہے؟ ہاں وہی اب اور بقیر صدقہ جیسے فطر واجب وہ بھی صاحب نصاب پر، غریب پر تو وہ لینے کی اجازت دی گئی ہے۔ ایسی جی جی قربانی بھی صاحب نصاب پر واجب رکھی گئی ہے، جی زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض کی گئی ہے، اور جو آدمی غریب ہو اس کو تو زکوٰۃ لینے کی اجازت دی گئی ہے، اور بجائے اس کے فقیروں کو کھلائے وہ یا دے وہ۔
तो बात यह है कि वो लोगों की बातें गलत हैं। आपका जो मौका हो कीजिए, ना मौका मत कीजिए। दावतें बिल्कुल मत करिए, मना है वो तो। छोटी मोटी जी हल्की सी फातिहा करना हो कर लीजिए, वरना ऐसी खाली कुछ पढ़ करके सवाब पहुंचाते रहिए। जी, तो मैंने ये सोचा हजरत कि मदरसे के बच्चे हैं, 4-5 बच्चों को बुला लूंगा, 1-2 और 2-3 इमामों को बुला करके वही फातिहा करा दें हजरत, वो सही हाँ रहेगा। बिल्कुल, काफी, बहुत काफी हो गया ये। जी। इतना हो जाए यही बहुत है। अब और हजरत आज वाजिब कुछ फोन भी नहीं है। और वो इज्जत के अंदर जो माँ को लिए कह रहे हैं, वो कोठरिया से बाहर नहीं आने दे रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं। बरामदे में आंगन में आ सकती हैं, घर के सब काम भी कर सकती हैं जो करने के होते हैं औरतों हाँ, के। और हजरत अभी अम्मी हमारी कह रही थी कि भैया अगर जो हम घर के अंदर रहीबा तो हम मर जीबा, हम बचबा नहीं। अरे नहीं, बहुत बड़ी जहालत है। आप कि कहीं से फतवा ले लीजिए अगर मेरी बात पे यकीन ना हो, उलमा नहीं अहले नहीं सुन्नत से। नहीं नहीं हजरत, मैं आपकी बात पर यकीन रखता हूँ और मैं आपको इस दुनिया का सबसे बड़ा आलिम मानता हूँ। अरे और खैर मैं आप ऐसी बात तो नहीं है, तो आपकी बात गलत है। नहीं हजरत, और ये है कि हम लोग उर्दू नहीं पढ़े मगर हिंदी मैं एमए किया हूँ इंग्लिश से। और ये है कि नौकरी नहीं मिल पाई हजरत, बाप के हम लोग सहारे थे, वालिद के, वो बेचारे इंतकाल कर गए, जिम्मेदारी हम लोगों के कांधों पे आ गई। बकरा और मुर्गा बाजारों में काट करके इसी से घर का गुजारा हो रहा है। अल्लाह ताला कोई- आपको जी खुशहाली अता फरमाए, मेरी दुआ है। जी जी। और और इज्जत के बारे में ऐसी कोई बात नहीं है, कोई आलिम नहीं कह सकता कि कोठरियाम बंद रहे हैं। ये जुल्म है एक तरह से। गर्मी के मौसम में उनको बाहर लाइए, आप बरामदे आंगन में रखिए। तो कोई जी बहुत जी। बड़ी मजबूरी हो तो घर से बाहर भी जा सकती हैं। और सर अस्पतालों में तो ले जा सकते हैं दवा वगैरह दिलाने। हाँ, अगर ऐसी ऐसी कोई सूरत हाल है कि बगैर जाए इलाज नहीं होगा, जी। ऐसा मर्द हो तो जा सकती है। डॉक्टर आ नहीं रहे हैं और तबीयत नहीं ज्यादा खराब हो, खतरा हो। तो अब ये है कि बीपी की मरीज है, शुगर भी रहता है, तो डॉक्टर यहाँ तो आएगा नहीं, तो हॉस्पिटल ही ले जाना पड़ेगा। तो नहीं आएगा तो दिन में जा सकती है, शाम को वापस आ जाए अगर नहीं आ सकता डॉक्टर तो। और जी तबीयत जी जी। खराब होने का और खतरा है, उसमें ब्लड प्रेशर में खतरा रहता है। हाँ सर, मेरे पापा का अटैक हुआ था सर, बिल्कुल ठीक थे, अचानक में इनका हार्ट सपोर्ट नहीं कर रहा हाँ था, अचानक में वो इंतकाल कर गए। तो ऐसी सूरत में अब माँ तो हमारी तो दिक्कत है ही है, उनको तो बीपी की मरीज हैं, वो भी खुदा न खास्ता कोई बात बन जाए तो हम क्या करेंगे। हाँ, नहीं नहीं, अगर ऐसी पोजीशन है तो दिन में जा सकती हैं दवा लेने, शाम को घर पर आ जाए। जी जी और ये फातिहा के लिए तो आला हजरत जो अपने मसलक के इमाम हैं, जी उन्होंने जी इस बात की वजाहत कर दी है। उनकी किताब में लिखा हुआ है फतावा रिज़विया में कि फातिहा व उर्स के लिए शरह से कोई मुतालबा नहीं, कोई जी मुतालबा जी नहीं, मतलब जरूरी नहीं है। जी तो जगह लिखा है उन्होंने कि वो नजर न्याज शोदाए करबो बला अगर बतौर शरह शरीफ हो तो जी। सिर्फ मुस्तहबात से है। उसके जी लिए जबर नहीं कर सकते किसी के ऊपर, किसी को मजबूर नहीं कर सकते उसे करना ही है। अब हजरत मैंने कल फातिहा मेरे वहाँ आज थी, तो मैंने मतलब यहाँ बोलते फकीरों मिस्किनों को खिलाओ, तो मैंने नहीं मतलब किसी को बताया, मैंने कहा 1.25 किलो गोश्त है, तो 15 लोग आ गए। 15 लोग आने के बाद में फिर मैंने पूछा तो लोगों ने कहा इनके पास तो 20-20 बीघा जमीन है, और मेरे पास हजरत खिलाने वाला जो है उसके पास 1 बीघा भी जमीन नहीं मेरे पास। ऐसे तो लोगों को समझ आए। बिल्कुल मत खिलाओ आप, जी। हिम्मत और से बोले, काम लो, बिला वजह की बात नहीं है। फकीर कहाँ है, मिस्कीन कहाँ है, ये भी हाँ 20 बोले बीघा कि जमीन वाले। बोले ये साईं बाबा हैं, साईं बाबा लोग हैं। अरे तो बड़ी जहालत है तुम्हारे गांव में सर, कहाँ की बात है ये? ये सर मतलब हजरत पड़ता है जिला लखीमपुर, तहसील निघासन, झंडी गांव। और मेरे झंडी? मामा जी झंडी? झंडी? जी जी, झंडी झंडी गांव। झंडी में? झंडी तो अच्छा खासा मुसलमानों का वहाँ तिजारत फैली हुई है। वहाँ अरे कुल हजरत मिलाकर के आपके जिम्मे कुछ भी वाजिब नहीं है, ना फातिहा वाजिब। जब आप गरीब हैं, ये हालात हैं, जी आपके इलाज में सब पैसे खर्च हो गए हैं, मुश्किल से आप बहन भाइयों को पाल रहे हैं। ये जी बहन जी। और भाइयों को पालना, उनकी परवरिश करना, ये भी बड़ी फातिहा है। हाँ हजरत, समझे ये आप? मैं आपकी हजरत मैं तकरीरें आपकी सुनता रहता हूँ, बहुत सारी तकरीरें, तो मैं आपकी ही, मेरे घर में पापा वो भी वालिद साहब सुनते रहते थे, तो वही बात ही अमल करते थे जो आपकी तकरीरों में लिखा था। और किताबें भी मैंने मेरे पास हैं हिंदी में आपकी, अब मेरी अम्मी भी वही बांधती हैं। आज फातिहा हो रही थी तो 2-3 औरतें आई, बोली कि आप कमरे के अंदर जाओ, बाहर काहे बैठी हो। तो ऐसी औरतें जब कहें तो उनसे कहना कहीं से फतवा ला दो हमें। कहना ये तो मुफ्ती अम्मी लोग होते हैं अपनी जमात के, उनसे कहीं से फतवा ला कर दो कि वो कमरे से बाहर ना निकले, हम भी निकलेंगे। ये हाल है जी उसका। हाँ हाँ, मैं हजरत अब आप ही की बात मानूंगा, मैं किसी की भी बात नहीं मानूंगा, सीधी बात ये है। हाँ,
यही सब मैटर तो चल रहा था। मैंने कहा बमुश्किल मैंने आपका पूरनपुर से एक इमाम साहब मेरे वहाँ पढ़ा रहे थे, तो उनसे मैंने नंबर लिया, तो मैंने कहा मैं उन्हीं से ही मसला पूछूंगा। और ये जो भी कुछ मसला, अपने ये आजकल अपने जो उलमा है इनकी भी कुछ इसमें कोताही है। बिल्कुल हजरत कोताही बयानात है। होते हैं, जलसे होते हैं, तकरीरें होती हैं, उनमें ऐसी बातें बताना चाहिए कि न्यास फातिहा के सबूत भी देते रहें, और सबूत देने के साथ साथ ये भी कहते रहें कि भी गरीब लोग परेशान ना हुआ करें, इसका जी जितना जी मौका हो उतना करें, ना मौका हो ना करें, उधार लेने की जरूरत नहीं। इतना सा अगर कह दिया जाए तो कितने गरीबों को राहत मिल जाएगी, है नहीं? जी, इसमें कोई बिल्कुल घाटे में नहीं चली जाएगी, इससे कोई नुकसान नहीं होगा इतना कह वही बात देने है। में। कहते नहीं है, खाली सबूत देते रहते हैं, बस सबूत देते देते वो हो गया मामला ये कि अब लोग परेशान कर रहे हैं, गरीब से गरीब आदमी घर में खाने को ना हो, उस पर भी कह रहे हैं कि उसको बारी करके फातिहा करना है। जी जी, और भाई ये बात बताना चाहिए आलिमों को कि मतलब ये क्या मसला है कि किस पर ये है। तो हजरत मैंने आपकी एक बात सुनी थी, तो मैंने एक बात एक जगह रखी कि मौत अतीस साहब की एक मतलब तकरीर है, उसमें उन्होंने ये लिखा है कि फातिहा मतलब खुद मतलब गरीब है, अगर वो खिला ले वही सबसे बड़ी फातिहा है। तो ये सब बातें बताना चाहिए आलिमों को। हाँ, तो ये है कि अब सुन्नियत देवबंदियत ये तो एक अलग बात है भाई। जो वहाबी है तो वो सलाह है ही है वहाबी। हम मगर ये है कि सुन्नियत को बचाया कैसे जाए, गरीब परेशान ना हो, इस्लाम ने क्या मतलब दीन दिया है, अल्लाह ने क्या दीन दिया, उसको तो सही तरीके से लोगों तक पहुंचाएं। ये आलिमों की हजरत ही कमी है। आप जैसे आलिम होते तो पूरी दुनिया में सब मतलब अमन होता। ठीक ये है कोई फिर, बात बता। अल्लाह ताला आपकी मुश्किल आसान फरमाए, आपकी वालिदा को शिफा अता फरमाए। जी जी मैं हजरत थोड़ा मेरी लंबी दुआ, बात नहीं कर पाऊंगा इस वक्त जरा मैं। जी हजरत मेरे और लिए बिल्कुल दुआ कर दीजिए। मेरा सचिवालय लखनऊ में समीक्षा अधिकारी में एग्जाम हुआ था, वो जल्दी फाइनल हो जाए। अल्लाह ताला आपके मकसद में कामयाबी अता फरमाए। जी हजरत दुआओं में याद रखना हजरत। मैंने आप मेरी एक खुशनसीबी है कि मैंने आपसे बात की। मैं हजरत अब्दुल कादिर हूँ, नाम नंबर सेव कर लेना। ठीक है। मैं अब्दुल कादिर झंडी। जी जी जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।